Cross your finger. Cross your legs. And relax yourself. We'll start with an Okar mantra. And Gemini Ben, if you can do the Gayatri mantra after I'm done. Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Uvajayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savo Pavo Panashano, Manglanancha Savvesim, Padmang Havai Mangalang. Go ahead, Gemini Ben. Om Bhur Swaha Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Gemini. Everyone, welcome. Sorry for this delay and sorry for a little bit technical problems. Gauravji has it, but we had a tornado watch over here, us too, but we came out with flying color and just the rain. So that's a good part of the nature. We are dealing with it. But everything happens in the universe is for the reason. And we are going to go on the deep meditation until he joins. Please relax yourself. Close your eyes, cross your fingers, cross your legs. Sit comfortably. Wherever you are sitting, either on the chair, on the floor, or on the bed, whichever way feel comfortable, just relax yourself. Take a nice slow breath in and out. Take a slow breath in and blow it out slowly through your mouth and relaxing your body completely. Nice slow breath in and keep on saying to yourself, I'm all relaxed. So lucky to have this body, human body. My soul chose to be in this body. I'm all relaxed and feeling happy. Life is good. Nothing to complain about. Just let the universe take care of you. You are completely relaxed from the head to the toe of your feet. All parts of your body is all relaxed. After the long day of the work, at home or at your work, whatever you did, this time is for yourself and yourself only. We are so lucky to join each other. सभी गुरु को वंदन कीजिए, अपने अपने गुरु को वंदन कीजिए. We are inviting all the gurus to sit with us, inviting the Chetna of Patriji,
inviting the Chetna of Mahavir Swami, all the Tirthankar Bhagwan, and inviting the Chetna of Krishna, Shiv, all the gurus, whoever you believe in. We are inviting their Chetna and their blessings with us. Going to relax ourselves. Slow breath in and out. Just keep on following your breath. अपने breath को ही follow कीजिए. Breath is your guru. We are born breathing in. And we're going to vacate this body by breathing out. Very important part of our life is the breath. Just keep on following your breath in, slowly going in your body. In your lungs. Feel that breath going all the way to your belly button. Nice slow breath in and out. Just feel that nice music. Slow, nice music. Thank you, Sachin. Beautiful music. It's relaxing you completely. Not thinking about anything, my friend. No past, which is already gone. No thinking about the future. Stay in the present tense. Breath in and out. All relaxed. Nice slow breath in and out. This dhyan is called Anapanasati dhyan. Ana, breath in. Ana means the breath out. Sati is joining both in and out. That's all it matters. Slowly you will keep on looking at your breath, all relaxed. You are
are not going to think about anything else. Sunya Avastha, when there is no thinking going on. That is the deep achievement of everyone. Slowly going deep inside you. Breath in and out. Life is beautiful. You wake up in the morning and you're breathing. You're walking. You're able to move your hands and legs. Your body parts are all working. Your eyes are working. You can see the beautiful things. Also, that's called Charma Chaksu. Now you close your eyes and you can still see it. That's beautiful nose. It's a permanent pyramid in your body. Your built-in pyramid, which allows the air in and out, gives you the life. Your beautiful mouth, your teeth, your tongue, can create the music with tongue. You can sing the beautiful songs. You are the creator. भगवान के भजन गाते हैं हम ये ब्यूटीफुल टंग के साथ भक्ति करते हैं भक्ति मार्ग में जाते हैं भक्ति मार्ग is the beautiful thing that connects your Chetna, Param Chetna, with Parameshwar. Sachin Gauravji is joined. If you can make him a co-host. आपकी परम चेतना के साथ ज्वाइन हो जाए Thank you, Gauravji, for coming. थोड़ी देर और भी ध्यान करा ले If this music is okay with you. Perfect. Can you take it over, sir? Yeah, fine. Thank you. Thank you. अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही इस ध्यान में और गहरे उतर जाएंगे।
स्वयं ब्रह्म है, क्रिएटर, रचनाकार हैं अपने सुंदर जीवन के। हम आज अपनी उस सुंदर अवस्था में अपने उस क्रिएटर फॉर्म में आकर स्वयं को आशीर्वाद देते हैं। मेरे शरीर के भीतर एक एक अणु, एक एक सेल, एक एक ब्रह्मांड है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। अपने ध्यान को अपने शरीर के अंदर एक एक अंग पर ले जाइए और देखिए एक एक अंग एक एक ब्रह्मांड है। छोटे से छोटे कण कोशिका पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो अपने आप में स्वतंत्र ब्रह्मांड है। इसी तरह से अपने ध्यान को यदि बाहर ले जाएं तो इस धरती, ये सौर मंडल अपने आप में एक ब्रह्मांड है। यह आकाश गंगा, मिल्की वे अपने आप में एक ब्रह्मांड है। और ऊपर ले जाया जाए जहां अनंत ब्रह्मांड है तो सब अपने आप में स्वतंत्र है और सब में वही एक शक्ति है। वो शक्ति जो मुझ में है, वो शक्ति जो आप में है, वो शक्ति जो एक एक कण कोशिका, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, झरनों में है, वही शक्ति जिससे मैं बना आज अपने उस सुंदर स्वरूप को जानते हुए, अपने उस सुंदर स्वरूप को पुनः जागृत करते हुए सबको आशीर्वाद देता हूं। और शुरुआत अपने भीतर विराजित उस पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ एकाकार करके करता हूं। I am that I am. I am not this body, not the mind, not these emotions and thoughts. Mind and body is just a tool. I am that I am. मैं यही परम चेतना हूं। अपनी सुंदर अवस्था को धारण करें और जानें, अनुभव करें कि इस अवस्था में कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। बस केवल परम शांति। इसी स्टेट में
स्वयं को ऐसे आत्म सुझाव दें, ऐसे अफर्मेशंस दें जो आपको आपके आत्म कल्याण की ओर ले जाएं, जो आपको आपके परम लक्ष्य की ओर ले जाएं। सुंदर जीवन दे और आत्मा की इस यात्रा में इस सबके पार ले जाए। सुंदर, बहुत सुंदर। आई एम दैट आई एम। मैं वही परम पिता परमात्मा की संतान यानी परमात्मा हूं। शुद्धो अहम, मैं शुद्ध हूं। बुद्धो अहम, मैं बुद्ध हूं। सत्य चित आनंदो अहम, मैं सत्य चित आनंद हूं। शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, मुक्तो अहम, सच्चिदानंदो अहम। मुझ आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। मैं सदा मुक्त थी, हूं और रहूंगी। मुझ आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यपो, न शेष्यति मारुतः। कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई वायु उड़ा नहीं सकती, कोई जल डुबो नहीं सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता। मैं मुक्त हूं, मुक्त आत्मा हूं, मुक्तो अहम। यही मेरा असली स्वरूप है। जब जब भी अपने असली स्वरूप से दूर होती हूं तो दुख, कष्ट, तकलीफ आते हैं। वो दुख भी मेरी आत्मा के लिए एक मेडिसिन है, एक दवा है, ताकि मैं फिर से अपने सुंदर स्वरूप की ओर आगे बढ़ूं और अपने परम सुंदर स्वरूप को धारण करूं। मैं यही मुक्त स्वरूप हूं। देखें, अपनी इसी परम शक्ति से अब हम अपने शरीर को हील करते हैं। इसी सुंदर ऊर्जा से, इस गोल्डन लाइट से हम अपने शरीर के एक एक अंग को, एक एक नाड़ी को, एक एक कण कोशिका को हील कर रहे हैं। ये सुनहरी प्रकाश हमारे शरीर में बह रहा है। वैज्ञानिक इसे IE कहते हैं, यानी इंटेलिजेंट एनर्जी, जो स्वयं जानती है कि कहां कष्ट अधिक है, कहां हमने गड़बड़ी कर दी। बस अब अपने इस परम स्वरूप से, इस इंटेलिजेंट एनर्जी से अपने शरीर को हीलिंग का आशीर्वाद दें। मेरा शरीर स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। सो बी इट। मेरा शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ है। जहां कहीं भी कोई डिजीज की एनर्जी थी, इस सुनहरी प्रकाश में घुलते घुलते
वो आपके पैरों के रास्ते से बाहर बाहर जा रही है। मानो आप इस समय एक शॉवर के नीचे हैं, एक फव्वारे के नीचे हैं, और ये फव्वारा है उस परम चेतना के प्रेम, शक्ति, शांति का, परम स्वास्थ्य का, जहां कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है, जहां है तो केवल स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम, खुशी, दया, करुणा। आपका शरीर चमक रहा है। ये प्रकाश न केवल आपके शरीर में बल्कि आपके शरीर से बाहर भी जा रहा है, सब और फैल रहा है। अब अपने मेंटल बॉडी की हीलिंग करें इसी गोल्डन लाइट से कि मेरा मन हील हो रहा है। मेरे मन में जो भी व्यर्थ के संकल्प और विकल्प पड़े हैं, वो सभी इसी प्रकाश में घुलकर डिसॉल्व, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। आपका मन भी शांत हो चुका है, एकदम शून्यता की ओर आगे बढ़ रहा है। बस केवल वही शुद्ध संकल्प जो आपको आपके परम लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। निरोगी तन, निरोगी मन, शांत शरीर को और शक्ति देता है और शांत शरीर का निर्माण करता है, उसको बनाए रखता है। अभी इसी गोल्डन लाइट से अपनी इमोशनल एस्ट्रल बॉडी की हीलिंग करेंगे। सारे ऐसे इच्छाएं, तृष्णाएं, डिजायर्स जो मुझे मेरे परम लक्ष्य से दूर कर रही थी, जो मुझे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन रखने से रोक रही थी, वो सभी डिजायर्स, सारी इच्छाएं आज इस सुंदर चेतना, इस ऊर्जा से जुड़ते ही समाप्त होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जुड़े भाव समाप्त हो रहे हैं। द्वेष का भाव अब प्रेम में परिवर्तित हो रहा है। सेवा का भाव जागृत हो रहा है। हर मन में सेवा का भाव जाग रहा है। सेवा का सामर्थ्य बन रहा है, भाव जाग रहा है। सबसे प्रेम, स्वयं से प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। इसी गोल्डन लाइट से अब आप अपने प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी की हीलिंग होते हुए फील करें, अनुभव करें। आपके सभी चक्रास, एनर्जी सेंटर्स आर बीइंग हील्ड। अपने प्राणमय कोश को देख सकें तो देखें। आपको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है कि आपका प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी
आपके सभी चक्र हील हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल इसी गोल्डन लाइट से शक्तिशाली होता जा रहा है। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज थे, उनके लिए डिवाइन गाइडेंस, हेल्प मिल रही है। सब इस समय शांति की स्थिति में है, अंडर अ गोल्डन शॉवर। इस फव्वारे के नीचे अनुभव करें और अपने ध्यान को वहीं ले जाएं जहां भी शरीर में कहीं कोई कष्ट था, और देखें कि बस इस गोल्डन लाइट में, इस लिक्विड लाइट में ये बीमारी की ऊर्जा, ये पेन बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। और आप भरते चले जा रहे हैं इस गोल्डन लाइट से, गोल्डन लाइट से। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। आपके चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट आ चुकी है। You have a beautiful smile on your face. चेहरे पे एक सुंदर स्माइल है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही बुद्ध हूं। बस अपने भीतर उस एनर्जी को फील करें। एक ब्यूटीफुल स्माइल आपके चेहरे पे। धीरे धीरे इसी मुस्कुराहट को साथ रखे हुए, इस ऊर्जा को, इस खुशबू को, इस भाव को साथ लिए ध्यान से तो बाहर आएंगे, पर इस आनंद से सारा दिन, पूरी रात, हमेशा भीगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, भरे रहेंगे। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को नीचे कर अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट को चेहरे पर बनाए हुए खोलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। Can you turn off the music, धन्यवाद। please? Thank you. Gauravji, thank you for coming. So sorry बहुत for ही the सुंदर delay. ध्यान था, बहुत ही ऊर्जा थी। आपके शब्दों का मैजिक पावर ही सभी ऊर्जा को लेके आते हैं यूनिवर्स से। Was amazing, amazing ध्यान। धन्यवाद। Thank you for coming. Thank you. जी हाँ, अभी हमारे पास कितना समय है दमयंती जी? You have plenty of time. I would say another, let's see, close to 1 hour, or if you have it, if you don't, whatever time you can हाफ give. एन आवर, 40 मिनट्स 45 minutes will be okay. हाँ, ठीक, दैट इज फाइन। चलिए,
आज हमारा जो विषय था वो था, वैसे तो स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक कैसे करना है, उसके लिए ज्ञान अगर हो तो हम और अच्छे तरीके से अपने आहार को, अपने मन को, विचार को बदल कर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये मैंने स्वयं के ऊपर भी और भी कई लोगों के ऊपर कई बार आजमाया है। मुझे अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए रूल्स हैं। अभी भी कभी कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो बिलीव मी, आई जस्ट कभी भी चलो 1-2 दिन निकल जाता है, समय नहीं मिलता अपने लिए, पर जब भी मिलता है आई नो कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट। बैठते हैं, यकीन जानिए, आई वेंट टू डॉक्टर, मतलब कोई 3 महीने पहले, तो मुझे ना डॉक्टर ने फिर बोला इसके लिए तो छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए दूसरे डॉक्टर ने बोल दी सर्जरी। मैं कहा ठीक है चलो, आई विल कम बैक आफ्टर अ वीक। मैं कहा मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ। बिलीव मी, वो दोनों चीजें ऐसी ठीक हुई कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी जाने की। और ये हुआ कैसे? ये किसी के लिए शायद होगा मिराकल। ये मिराकल रोज हमारे साथ हो सकता है। जैसे शरीर बीमारी को क्रिएट करता है, वैसे शरीर बीमारी को खत्म भी कर सकता है ना? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यू हो गया, लिवर में प्रॉब्लम हो गया जी, घुटनों में प्रॉब्लम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, दैट मीन्स हमने कहीं तो कोई गलती करी थी। तो वो गलती करी थी, और बीमारी बाहर से तो किसी ने अंदर डाली नहीं है ना, अंदर से बनी ना। तो अगर अंदर बन सकती है तो अंदर ठीक भी हो सकती। पहले तो ये विश्वास रख, वो विश्वास रखेंगे तो मैं बता रहा हूँ, जो वो बेचारे डॉक्टर्स का सर्जरी का पैसा नहीं दे सका तो अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ी, आई कुड हील विद इन, मतलब कहते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे बैठे हो ठीक हो गई, 2 घंटे के अंदर। एक बार हमें जाना था, लास्ट नवंबर की बात है, हमें यात्रा के लिए जाना था, उत्तराखंड, महाअवतार बाबा जी के, एंड वो सब हमारा प्लान था। तो जिस दिन जाना था हमारी बुकिंग थी, तो ग्रुप ग्रुप लेकर के हम जाते हैं। यात्रा का हमने सुंदर सा नाम आया, ध्यान से ध्यान तक यात्रा। तुम साल में 2 दफा जाते हैं, तो जाना था। तो एक दिन पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी कि मेरे से लेट उठा भी ना जाए, बैक में बहुत दिक्कत हो गई, चलना भी मुश्किल था, बहुत दिक्कत हो गई। अब इस कंडीशन में जाना और ये सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। तो मुझे कोई बोले कि आप ये कर लीजिए, वहां से कर लीजिए, मैं कहा चलो आई विल डू इट। तो बिलीव मी, जो लोग साथ थे वो जानते हैं। मुझे कोई पेन किलर देगा कि सर आप फिर पेन किलर तो लो कम से कम, ये पेन किलर लो, ये एक और टेबलेट ले लो। मैं कहा चलो रख जाओ। बिलीव मी, 4 गोलियां थी, वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी खाने की। बिलीव, एक भी नहीं, एक पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे ठीक हुआ? मैंने कहा जाने से एक दिन पहले आई स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा हीलिंग बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया। मैंने ध्यान किया, हील किया अपने ऊपर। कैसे? मन में एक संकल्प बनाया, मन को एक कल्पना दी कि मैं चल रहा हूँ, ट्रेन में एंजॉय कर रहा हूँ, आगे टैक्सीज में हम जा रहे हैं, मतलब मैं आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं गुफा में जा रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। बिलीव भी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं जाने से पहले आई वाज जंपिंग, मैं कूद रहा था पूरी तरह से, छलांगे मार रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था, चढ़ रहा था, चल रहा था। आई वाज परफेक्टली 100% नहीं, 101% ठीक हो गया था। और सिंस देन वो प्रॉब्लम ही नहीं आया कभी, बिकॉज आपके मन को आपको विश्वास दिलाना होता है। अब वो विश्वास, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें ही विश्वास नहीं है, हमें ही विश्वास नहीं है। हम पता क्या करते, आ, ओके ओके, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ये आपको पता चल गया। अब बच्चा जब जाता है आपका, 2 घंटे बच्चा लेट हो गया, आपके मन में पॉजिटिव थॉट नहीं आता, आपके मन में हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि आपने नेगेटिव को फीड बहुत किया है पहले। अब नेगेटिव आएगा, फिर आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, एंजल्स आर विद माय सन, एंजल्स आर विद माय डॉटर, दे आर सेफ, प्लीज प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, दे आर प्रोटेक्टेड, ओके ओके। फिर विचार आएगा, फोन नहीं लग रहा उनका, कहीं टायर पंक्चर तो नहीं हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। फिर नेगेटिव आया, फिर से आप कोशिश करते। आप इस नेगेटिव में जब ज्यादा समय आप देखिए नेगेटिव थॉट्स में रहता है, कहीं बीमारी बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर मैं बिस्तर पर पड़ गई, फाइल भी बेड रिडन, देन व्हाट, अगर सक्सेस नहीं मिला सर्जरी में तो,
अगर डॉक्टर अच्छा नहीं मिला तो हाय, मतलब इतनी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि नहीं 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 डाल रहे, बस ये कोशिश जो है वो बढ़ा दीजिए, और इतनी बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए कि बस नेगेटिव को फीड ही मत करिए। नेगेटिव पहला थॉट आएगा, आप फीड करेंगे तो 1000 बन जाएंगे एक के। ये काम बंद करिए, डोंट डू दैट। चलिए आइए हम बात करते हैं आज हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई बीपी कैसे होता है उसकी शुरुआत फिर से वही पहले वाले सेशन पे ले जाऊंगा ताकि आपको याद रहे। आपकी माइंड के अंदर जैसे ही आप एक सिचुएशन, एक इनर इवेंट को क्रिएट करते हैं कि ट्रबल है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आपके अंदर सर्वाइवल मोड शुरू हो जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब आपकी बॉडी को नहीं पता है कि टेंशन किस चीज की है, कि आज हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे मेरा भूल गया, उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, तो इसी की टेंशन है, या कोई शेर भालू खाने आ गया। आपके आपके ब्रेन को नहीं पता, आपके अंदर के ग्लैंड्स को नहीं पता। तो आपके ग्लैंड्स जो हैं वो किसी भी तरह के हार्मोन्स बना सकते हैं। यू हैव 10 ग्लैंड्स। इस बारे में जरूर बात करेंगे कि कैसे आप हमेशा हर बीमारी से दूर रहें। एक माहौल बनाए, देखिए बीमारी को बढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए। अगर आप वो माहौल चेंज कर दोगे अंदर तो बीमारी खुद मर जाएगी, है ना। अब बैम्बू प्लांट लेके आते हो, उसको पानी में रखते हो, अगर पानी में नहीं रखोगे वो मर जाएगा प्लांट। उसको एक माहौल चाहिए ना। तो इसी तरह से बीमारी को भी एक माहौल चाहिए, नेगेटिविटी को बढ़ने के लिए भी माहौल चाहिए। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट सेशन करेंगे, पर आज समझते हैं कि जैसे ही आपके भीतर वो फ्लाइट एंड फाइट मोड शुरू होता है, वो किसी भी कारण से हो, वो कारण आउटर इवेंट ही होगा। आप तो यही बोलेंगे कि उसने मुझे इंसल्ट किया इसलिए मेरे को टेंशन हुआ, उसने मेरे साथ चीटिंग की इसलिए ये हुआ, ठीक है, मैं लेट हो गई थी घर से, लेट हो गए थे तो कार भी खराब हो गई इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और लेट हो गए, मेरी अपॉइंटमेंट है वो मिस हो गई। तो ये चीजें बाहरी हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह से। पर आप इन बाहरी चीजों के होने के बाद यहाँ पे जो बनाते हो दैट इज प्योरली प्योरली कंप्लीटली विद इन योर कंट्रोल। अगर आपने वहां कंट्रोल खो दिया, यहां पर इवेंट बन गया, फाइट एंड फ्लाइट मोड शुरू हो गया, देन व्हाट विल हैपन, आपके लिवर के, क्योंकि आपकी बॉडी अब आपको तैयार करेगी, आपके अंदर वो हार्मोन्स बनेंगे जो आपको कंप्लीटली पूरी तरह से फुली स्ट्रेस में बनते और स्ट्रेस को बढ़ाते। कि जैसे जंगल में किसी के पीछे शेर लग जाए तो जो हार्मोन बनेंगे वही आपके अंदर बन जाते हैं। छोटी सी टेंशन से, शेर तो कोई है नहीं अब आपके पास खाने के लिए, कोई भालू, भेड़िया, कोई पाइथन आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ, परंतु जो विचार हैं वो शेर, भेड़िया, भालू से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों हम सोचते हैं कि हाय, कभी अपनी टेंशन, कभी अपनों की टेंशन, कभी किसी की टेंशन, कभी क्रोध के विचार, कभी ईर्ष्या के विचार, कभी इनसिक्योरिटी के विचार, कभी फियर्स हैं आपको, वो सारे आ रहे हैं। उससे फाइट एंड फ्लाइट मोड दिन में कई बार बनता है। अगर इंसान जंगल में रहता था तो साल में 2 बार 3 बार ही शेर, भालू, भेड़ी से सामना होता होगा ना। अभी तो दिन में 20 बार बना रहे हो, 20 टाइम, 10 टाइम द डे। तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर, बॉडी को लगता है कि हम इसको तैयार करें फाइट करने के लिए, बिकॉज यू नीड एनर्जी टू फाइट। फाइट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब ना तो हम फिजिकली फाइट कर रहे हैं, ना ही फिजिकली भाग रहे हैं, परंतु बॉडी का सिस्टम वही है, जैसे इंसान जंगल में रहता था वो वाला था। अब हमारे पास टेंशन के रीजंस और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हमारी लिवर में, फिर जब हमारी बॉडी को तैयार किया जाता है, लिवर में एक्स्ट्रा शुगर है, वो एक्स्ट्रा शुगर को ब्लड में फेंकते हैं, ब्लड में फेंकते हैं ताकि हमारे पास एनर्जी आए। शुगर मीन्स एनर्जी, ग्लूकोज मीन्स एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो एनर्जी डाल देते हैं कि इनको शायद मेरे मास्टर को बड़ी जरूरत है, कहीं लड़ाई लड़ाई करनी है, कोई कहीं भागना है, शेर चीते से लड़ना पड़ेगा इसको अपने बचाव के लिए, तो इसकी सपोर्ट करो। आपकी बॉडी, आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी प्रजा हैं और आप राजा हो, वो राजा की रक्षा करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, राजा ही गुमराह हुआ है, राजा को ही नहीं पता कि प्रजा को क्या बोलूं। तो वो 70 to 72 ग्राम शुगर आपके ब्लड में डाल दी गई,
शुगर का लेवल बढ़ गया बॉडी में, पर वो टेम्परेरी स्टेट है, बढ़ गया। अब लोग कहेंगे जी शुगर की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज। फिर वो शुगर आपके पूरे ब्लड लाइन में, आपके शरीर में सब जगह जाए, उसके लिए क्या होगा? ब्लड एक प्रेशर से, तेजी से सब जगह बहेगा, सब वेसल्स की ओर। उसको बोलेंगे हम हाई बीपी। ठीक। नाउ मैं आपको कुछ और चीज बताता हूं। एक अगर आप केमिस्ट्री स्कूल में पढ़े तो आपने जरूर सुना है एक नाम, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपने सुना है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बड़े काम की चीज है, और मैं आज आपको बताने भी वाला हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? अगर हमारे शरीर में बने तो ये हमारी जो नाड़ियां हैं इनको डायलेट कर देती है। मतलब खून बह रहा है, अगर रास्ता जो नाली है वो खुली है तो खून प्रेशर से तो नहीं बहेगा ना, अब वो उनको खोल देते हैं। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बना तो क्या होगा? आपकी ये नाड़ियां जो हैं ये खुल जाएंगी, डायलेट होंगी। डायलेट होंगी तो प्रेशर से नहीं बहेगा ये खून आसानी से बह जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम इज कि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड को सपोर्ट करने के लिए एक और केमिकल को समझना है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसको समझना है। ये बनेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो आपकी नाड़ियां खुलेंगी, रास्ता खून के दौड़ने का खुला हो जाएगा, इसलिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसके लिए गोली, पता ब्लड प्रेशर की सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली दवाई यही है, यही दवाई है जो हर घर में पहुंचती जा रही है। छोटे छोटे युवा भी खा रहे हैं। हाई बीपी हाई हो गया, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाई बीपी। ये कहते हैं हाई बीपी क्यों है? अब समझते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नहीं बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज क्यों नहीं बन रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में वो चीजें हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नहीं बनने देती। दैट इज नंबर वन, फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। फ्री रेडिकल्स कैसे? आपने कुछ ऐसा खाया, शराब, सिगरेट, तंबाकू, फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर। आपने ऐसा खाना खाया जिसमें बहुत ज्यादा आप मान लीजिए फ्राइड, जंक फूड, ठीक है, बहुत ज्यादा खाया, उससे आपकी बॉडी के अंदर, जिसको पचाने में, एंड मीट, मीट के अंदर तो एंडोटॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं जो ना जलाने से, पकाने से, फ्राई करने से, उबालने से नहीं मरते हैं। एंडोटॉक्सिन्स हमारी बॉडी में तो जाते ही हैं, परंतु हमारी बॉडी में हमारी गट लाइनिंग होती है। हमारा जो पेट है, पेट की पतली सी प्याज के छिलके से भी पतली झिल्ली है जिसको गट लाइनिंग बोलते हैं, और वो गट लाइनिंग फट जाती है इनके कारण, एंडोटॉक्सिन्स के कारण। और अगर गट लाइनिंग फट जाती है तो ये सारा का सारा जो टॉक्सिन्स हैं, ये गंदगी है, ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आते हैं तो पूरे शरीर में चले जाते हैं। इसी से बीमारियां बनती हैं। इसी को कहते हैं लीकी गट हो जाना, गट इज लीकी। इसलिए जब तक ये रहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी अच्छी मात्रा में नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा? नाड़ियां डायलेट नहीं करेंगी, सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ जाएंगी तो क्लॉटिंग भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। क्लॉटिंग तो है, हाँ, सिर्फ इतना है कि ब्रेन में हो जाए तो बंदा, हार्ट में हो जाए तो हार्ट, हार्ट का गया, तो बस कहीं ना कहीं तो हो रही है क्लॉटिंग। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस बनाना है। मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, मुफ्त की चीज, जिसको आप रिजेक्ट भी करके आते होंगे शायद। एक ऐसी सब्जी, सलाद, चुकंदर, बीट रूट, है ना, खाते हो? अगर नहीं खाते तो आज से शुरू करना। बीट रूट अगर खाएंगे तो वो पूरी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड का प्रेशर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है।
हमारी लंग्स की हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारी श्वसन प्रणाली अच्छी हो जाती है, हमारे पेट के अंदर अगर आप रोज एक सेब खाते हैं, 1 एप्पल अ डे, देन वो आपके लीकी गट को रिपेयर करने में मदद करता है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बता सकता हूँ, पर कभी और दिन, जिस दिन पेट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, लीकी गट के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज ज्यादातर समस्याएं जो हमारी शरीर में है ना, अगर हम कुछ 2 3 4 चीजें कर लें तो सारी सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसमें से एक है लीकी गट को ठीक करना। ठीक है, ज्यादातर लोगों का आजकल लीकी गट है, मतलब गट लाइनिंग जो 2000 स्क्वायर फीट में अगर बाहर फैलाया जाए तो इतनी इतनी लंबे एरिया है, वो इतनी लाइनिंग हमारे इधर आंतड़ियों की लाइनिंग है बेसिकली, वो तो वो फट जाती है। अगर उसको ठीक किया हो जाएगा। इसलिए एक सेब खाएं। चुकंदर क्यों पिए, कुछ प्रयोग किए गए। किताब है डॉक्टर माइकल ग्रैगर और जीन स्टोन की। इस बुक का विषय शायद जिक्र मैंने शायद पहले भी किया है। उस किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाई। उस किताब में ये दिया गया है कि ये प्रयोग किया गया, चुकंदर जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स डाइवर्स होते हैं गोताखोर। तो गोताखोर जो हैं वो पानी के अंदर जाके श्वास को रोकते हैं। तो उनके ऊपर प्रयोग किया गया कि उनको चुकंदर का एक एक ग्लास जूस पिलाया गया और देखा गया उनकी जो टाइमिंग थी श्वास को रोकने की वो इंक्रीज होगी तुरंत। चुकंदर का जूस पीते ही उनकी जो टाइमिंग थी वो इंक्रीज हो गई तुरंत, 30-30 सेकेंड। फिर जो साइकिलिस्ट थे, जो ऑब्स्टेकल्स के साथ साइकिलिंग करते हैं, वो 9 मिनट में थक रहे थे। उनका जो एवरेज थकने का टाइम था वो 9 मिनट था। उनको एक एक ग्लास चुकंदर का जूस पिलाया गया और देखा गया कि सबकी जो थकने का टाइम था वो 11 मिनट हो गया। ये सब आपको उस पुस्तक में भी मिल जाएगा। 11 मिनट हो गया। इसलिए चुकंदर जो है अगर खाते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। रीजन सिंपल, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा खूब। नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो नाड़ियां खुलेंगी, डायलेट करेंगी। उसका काम ही ये है। जब आप हंसते हो तो क्या होता है, सिकुड़ते हो फैलते हो, फैलते Yes. फैलते। सो आप नाइट्रिक ऑक्साइड को मानिए कि आपके अंदर हंसाने वाला, आपकी नाड़ियों को खोलने वाला, खुशी देने वाला एक केमिकल है। जैसे नाड़ियां खुल जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, आपके खून का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपने शरीर के अंदर बार बार ये जो सर्वाइवल मोड को ऑन करते हो, ये नहीं करना। सर्वाइवल मोड यानी स्ट्रेस, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। आप उन चीजों के बारे में भी सोचते हो, उन चीजों के बारे में भी सोचते हो जो शायद कभी ना होंगी। सोचने की आदत है कि हम ये तो सोचेंगे कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा, फिर उसके आगे, 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 बस वो सब सोच देते हैं, वो सब सोच डालते हैं जो शायद कभी नहीं होगा। अगर चोरी हो गई तो, अगर ये हो गया तो, ये लॉक लॉक टूट गया तो, अगर ये चाबी गुम हो गई तो, अगर कुछ हो, इतना कुछ सोचते हैं भाई जो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको आ, हमने अभी इंसोमिनिया के ऊपर सेशन किया है क्या दमयंती जी, यहाँ पे नहीं नहीं। किया, नहीं किया। दूसरी चीज जो कहने वाला हूं वो है कि अपनी नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा कीजिए। हम करेंगे, आप मुझे चाहे कब नेक्स्ट जब भी होगा तो आप मुझे एक बार बस वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए, बता दीजिएगा कि करना है। इंसोमिनिया के ऊपर जरूरी करेंगे। नींद ना आने की समस्या, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी दवाई बिकती है ना वो यही है, नींद वाली। कि नींद नहीं आ रही लोगों को। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है, नींद की क्वालिटी अच्छी है, देन आप ये मान लीजिए कि आपकी आधी बीमारियां खत्म या सारी ही खत्म। प्रॉब्लम इज कि हम सोते तो हैं, हम घड़ी में उनके नंबर ऑफ आवर्स तो देखते हैं,
6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप 10 घंटे सोते हो तब भी आप जब उठते हो तो आप थके हुए हो। जब आप सोकर उठते हो तो आपको फ्रेश होना चाहिए। इंसान सोकर उठता है 1 घंटे बाद फिर से थका हुआ है, ये कैसा सोना था? नींद एक गिफ्ट है, एक उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं। प्रॉब्लम इज कि आजकल क्वालिटी स्लीप नहीं है, रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं है। रेस्टोरेटिव स्लीप, रेस्टोरेटिव स्लीप यानी डीप हीलिंग स्लीप, जिसमें हमारा रैपिड आई मूवमेंट जो है, मतलब आंखों को अगर देखेंगे तो नींद में भी आंखों के अंदर बॉल्स हिल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, यानी कि आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं, दैट इज रेम जीरो होना। वो पूरी रात में आज की डेट में औसतन एवरेज सिर्फ 3 मिनट के लिए होता है, ओनली फॉर 3 मिनट, एंड दैट इज द टाइम जब हमारी हीलिंग होती है। इसको रेस्टोरेटिव स्लीप बोलते हैं। वो समय होता है जब आपका शरीर पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेता है। गहरी नींद, गहरी नींद, गहरी नींद लेंगे तो आप फिर से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। जरूरी केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स आपके भीतर बनेंगे। हैप्पी हार्मोन्स को बनाइए। इसके लिए अगला पॉइंट है, दैट इज सॉल्ट की मात्रा को कम करना। हर चीज में सॉल्ट आ गया, स्वाद भी बन गए। हमारी नमक की रिक्वायरमेंट एक दिन में कितनी है? एक छोटे चम्मच का 1/4 हिस्सा, दैट्स ऑल। 1/4 ऑफ अ टी स्पून, दैट्स ऑल। एक व्यक्ति को इतना नमक पूरे दिन में चाहिए। हमारे एक मील में भी इससे ज्यादा होता है। हमारे तो एक मील में भी इससे ज्यादा है, और फिर हर चीज में नमक है। इसलिए नमक की इनटेक को भी आप कम कर लें। आप देखेंगे कि अगर आप प्लांट डाइट पे आते हैं, एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। गए, एक कबीला है, वहां पर देखा कि हर व्यक्ति का जो बीपी है 60/100, 60/100, 60/100, 60/100, 60/100, जैसे मतलब ऐसा हो कैसे सकता है? मैं एक बूढ़े व्यक्ति का चेक कर रहा हूं, मैं युवा का कर रहा हूं, सब तकरीबन इसी रेंज में आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ठीक कैसे हैं, इनकी जीवन शैली के ऊपर थोड़ा झांकते हैं, देखते हैं। देखा गया कि वो लोग थे, वो नमक नहीं खाते, नमक ना के बराबर, मतलब ना के बराबर नेचुरली जो मिलता है, और वो प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट, रॉ फूड। जब आप अपने आहार में रॉ फूड को, प्लांट बेस्ड डाइट को शामिल करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप बीमारियों को गुड बाय बोल रहे हैं। रॉ फूड, अगर आप ये मान लें कि आप मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप फ्रूट लें, फ्रूट लें जिसमें आपका वजन है जितना, मान लीजिए किसी का 60 किलो वजन है तो उसको 600 ग्राम फ्रूट लेना चाहिए मॉर्निंग। किसी का 70 किलो है तो उसको 700 ग्राम फ्रूट लेना चाहिए, दैट इज द ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद में लंच जब आप लेते हैं, टाइम इसमें डेफिनेटली टाइम का ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए आपने 10 बजे से पहले फ्रूट ले लिया, अब आपको 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास जब लंच करना है, देन लंच में क्या होना चाहिए? आपका सैलेड होना चाहिए। अगर किसी को 70 किलो वजन है तो आप मान के चलिए कि 350 ग्राम उसको सलाद खाना है पहले, प्लेट में डाल के। अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम, ये सैलेड खाना है। सैलेड में क्या क्या होना चाहिए? अब आपकी सैलेड में चुकंदर जरूर होनी चाहिए, चुकंदर जरूर होनी चाहिए, बीटरूट जरूर होने चाहिए, जरूर। अगर आप अपने खाने में देखिए, अगर कोई सैलेड ऐसे नहीं खा सकता तो उसको जूस निकाल के पी लीजिए, जैसे भी सेवन करना चाहें, नो प्रॉब्लम। पर बीट रूट को जरूर अपने भोजन में शामिल करिए, ठीक है? बाकी जो भी सैलेड आपको मिल रहा है कोशिश करिए थोड़े पत्ते भी जरूर खाएं।
जो भी आपको सीजन में मिल रहे हैं, ठीक है, लीव्स। तो इसके बाद में आप अपना दाल सब्जी फिर खाइए, पहले सलाद फिर वो। शाम को फिर से जो रात का भोजन है वो टाइम से पहले करने का प्रयास करें, और उसमें भी यही सलाद और दाल सब्जी, चपाती, चावल, जो भी खा रहे हैं। वेरी सिंपल। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों को गुड बाय कहते हैं। और नमक कम, ये हमने बात कर ली। 1950s की बात करते हैं। अमेरिका कोरिया की वॉर के समय की बात है, और 1953 में बाद में गामा में, जो मैं अभी बात रिसर्च के बारे में बात करने जा रहा हूं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें पब्लिश हुई थी बात, ये रिसर्च। तो उसमें क्या था, जो युद्ध में सैनिक मारे गए थे उन सैनिकों की एवरेज एज थी 22 साल। उनको चेक किया गया, 300 सैनिकों को जो मर गए थे, वॉर में शहीद हो गए थे, ठीक है, वॉर में मरे थे। तो वॉर में मरे हुए सैनिकों को उनको पोस्टमार्टम करके चेक किया जा रहा था। पता तो था कि लड़ाई में मरे हैं, 22 साल 23 साल का बंदा, परंतु फिर भी चेक किया गया तो रीजन क्या निकला, चौंका देने वाला, कि 77% लोगों की हार्ट आर्टरीज बंद थी। और समझ रहे थे दुनिया वाले ये जंग में मारे गए हैं, वेयर एज 77% की हार्ट आर्टरीज बंद थी। इससे चौंका देने वाली बात सामने आई, तो इस रिसर्च ने एक नया मोड़ लिया। फिर वो 3 से 26 साल के बच्चे जिनकी एक्सीडेंट में मौत होती थी, उनका भी, उनकी बॉडी को भी उन पोस्टमार्टम करते थे और देखते थे व्हाट इज द रीजन। और ये देखा गया कि उनके अंदर भी हार्ट में क्लॉगिंग शुरू हो चुकी है। फिर 10 साल के बच्चे तक भी रिसर्च करी गई और पाया गया कि मरने का कारण एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट तो है, परंतु ये हार्ट के अंदर, हार्ट आर्टरीज में क्लॉगिंग हो गई। फिर एक और स्टेप पर इसको ले जाया गया। जो बच्चे अबॉर्ट करती थी माताएं, या मिसकैरेज हो जाता था, मर जाते थे, पाया गया कि अगर उनकी माताओं को भी ये पैटर्न है, बीमारी है, हार्ट की क्लॉगिंग है, ब्लॉकेज हो रही है, तो बच्चों के अंदर वो पैटर्न अभी से है गर्भ में। सी वी कैन गिफ्ट अ गुड हेल्दी लाइफ टू आवर सेल्फ, ना सिर्फ अपने आप को जो डाइट है, देखिए थोड़ा सा फैट समझ ले हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, तो उससे बचना है। तो का सेवन, गौरव जी, आपका वॉइस कट हो पिज्जा इत्यादि में है। ओके ओके, सो सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ सॉरी। इंटरनेट अनस्टेबल हो सकता है। तो वो दैट इज वेरी बैड फॉर अस, ठीक है, खाना शुरू कर दी, ये अदर बैठे हुए जा रहे हैं आप, पूरा पैकेट आप खत्म कर गए, एंड ये एक्स्ट्राज हैं, ये आपको ना, ये आपका भोजन भी नहीं है, ये फालतू में खाया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह की चीजें, ट्रांस फैट को पूरी तरह से अवॉइड करिए। देन दूसरी बात आती है, दैट इज सैचुरेटेड फैट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। मैंने फिर बता देता हूं, मीट कोशिश करें न खाएं। मीट में एंडोटॉक्सिन्स हैं जो कुक करने पर भी नहीं मरते हैं, जो आपकी गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, हार्ट की आर्टरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तब भी आपका हृदय, हार्ट काम करना बंद कर देगा। उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है।
ठीक है। और ये सब चीजें आपके ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देंगी और आपके हृदय को नुकसान पहुंचाएंगी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इज हाई, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, दैट इज हाई। इसलिए प्लांट डाइट पर आए। अनसैचुरेटेड फैट मींस जो पीनट्स में है, जो नट्स में है, ये जरूर खाएं, दैट इज वेरी गुड। ये जो फैट है दैट इज गुड, दैट इज रिक्वायर्ड, नीडेड, ये हमें चाहिए। इसलिए अपने भोजन में आप नट्स को शामिल करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज, ठीक है। और हो सके तो अपने हार्ट के लिए ब्राजील नट का सेवन करें, ब्राजील नट। क्योंकि ब्राजील नट अगर आप महीने में एक बार भी खा लेते हैं, ये पाया गया कि ब्राजील नट केवल 9 दाने दिए गए पेशेंट्स को और देखा गया कि उनकी 20% हार्ट ब्लॉकेज खुल गई सिर्फ एक बार देने से। को लगा कि नहीं, ये बाय चांस हो सकता है, हो सकता है अभी खुली है वापस से फिर बन जाए। एक महीने बाद दोबारा से चेक किया गया, जो 20% खुल गई थी ब्लॉकेज, तो क्लॉगिंग 20% कम हो गई थी, वो 20% कम ही रही एक महीने बाद में। अगर किसी को ब्राजील नट, वैसे तो आजकल अवेलेबल है सब जगह, परंतु अगर ब्राजील नट नहीं मिलता तो इसका सब्स्टिट्यूट भी है, दैट इज सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स को अपने भोजन, और चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स प्लस चिया सीड्स, इनको अपने भोजन में शामिल करें। परंतु आपको एक ब्राजील नट आपको क्या देता है? सिलेनियम देता है। ब्राजील नट आपको सिलेनियम देता है और हार्ट को ठीक करने के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज और क्लॉगिंग जो हो गई है, मान लो हो चुकी है, पहले से बन गई, मैं इसलिए जिक्र किया कि हार्ट और बीपी का बड़ा संबंध है आपस में। तो अगर पहले से बॉडी में बन गई, क्लॉगिंग हो गई, जब 10 साल के बच्चे की शुरू हो चुकी है तो हो जाती है। हम कहते हैं कि अटैक 50 साल में आया, 70 साल में आया, वो नहीं आया, वो पहले से बन रहा है, तैयारी हो रही है। इसलिए क्या करेंगे कि ब्राजील नट को आप जब लेते हैं तो सिलेनियम मिलता है, महीने में एक बार ही लेना ब्राजील नट को। इतना सिलेनियम की अमाउंट ऑफ सिलेनियम, इतना ही हमें जो चाहिए वो एक बार ब्राजील नट लेने से मिल जाता है। परंतु अगर आप ब्राजील नट ना लेकर के सनफ्लावर सीड्स लेते हैं तो आपको डेली थोड़े सनफ्लावर सीड्स लेने पड़ेंगे पूरा महीना, ताकि उतनी अमाउंट ऑफ सेलेनियम मिले। इधर टेक ब्राजील नट वंस मंथ या टेक सनफ्लावर सीड्स एंड चिया सीड्स डेली, सो दैट सेलेनियम मिले। सेलेनियम क्या करेगा? आपकी ब्लॉकेज को रिवर्स करेगा, खोल देगा। अब देखिए, ये बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी, नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, है ना। अगर ये बातें पहुंच जाएंगी कि भाई ब्राजील नट खाने से ही हो जाता है, चुकंदर का जूस पीने से तो इंसान को बीपी की गोली की जरूरत नहीं पड़ती, बिलीव मी, बिलीव मी। हमारे एक मित्र थे, उनको उनका बीपी बढ़ा ही रहता था बहुत। उनको एक जबरदस्त अटैक आ गया, बड़ी मुश्किल से नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, थैंकफुली वो ब्लीडिंग हो गई, हॉस्पिटलाइज, हाई बीपी, बुरा हालत थी, पता नहीं कित कहाँ तक पहुंच गया, 250 तक पहुंच गया, तो बुरी हालत हो गई। तो उसके बाद में जब वो थोड़ा जान बची, वापस आए, तो मैंने उनको यही बात बताई। मेरा एक वीडियो है हाई बीपी के ऊपर मेरे चैनल पे, तो मैंने वो वीडियो उनके सामने चला दिया। मैं कहा ऐसे तो मेरी बात सुनोगे नहीं, तो चलो ऐसे ही सही। उस समय धक्का भी लगा था, सुन ली। यकीन जानिए, उसके बाद सैलेड उनके जीवन में आया। मैंने उनकी पत्नी को फोन किया, मिलने गया, बताया, पूरी एक चुकंदर वो रोज खाते हैं। उसके बाद से आज तक उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पूरी एक चुकंदर खाते हैं रोज, डेली। हालांकि स्ट्रेस वो इंसान आज भी बड़ा लेता है, बट What is इवन देन बॉडी ढील what जाती is है जी। chukandar? दैट इज बीट रूट। Okay, बीट रूट, okay. बीट रूट को हिंदी में चुकंदर कहते हैं जी। Sorry, तो sorry. जी जी, तो बीट रूट, बीट रूट को अपने खाने में शामिल करिए। कैसे करें? लोग पूछते हैं कि थोड़ा कसैला, गले को कई बार ड्राई लगता है, तो इसका जूस नहीं पी सकते, जूस पी लीजिए। नहीं पी सकते, खा लीजिए रॉ, सबसे बेहतर है रॉ। नहीं तो फिर इसको बड़ी सारी डिशेस बन जाती हैं। लोग आजकल बीट रूट सैलेड खा रहे हैं, इसको ग्रेट करके। लोग आटा जब गूंथते हैं तो उसमें इसको ग्रेट करके डाल देते हैं, जैसे गाजर की रोटी, ऐसी रोटी, तो ऐसी रोटी खाते हैं उसके आटे की। पानी कम डालते हैं, बीटरूट डाल करके आटे को
बना लेते। सो यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ रेसिपीज ऑन यूट्यूब, इंटरनेट कि कैसे खाएं बीटरूट को, पर खाइए, इसका इस्तेमाल करिए। रीजन इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्राजील नट 9 दाने महीने में एक बार बस, नहीं तो सनफ्लावर सीड थोड़े से, चिया सीड्स पानी में भिगो करके, जिसको सब्जा के बीज बोलते हैं हिंदी में, तो चिया सीड्स पानी में भिगो करके उसको चाहे दही में, चाहे सैलेड में, चाहे जूस में, किसी में भी डाल करके ले। दैट इज अच्छा, फाइबर भी मिलेगा और मजा भी आ जाएगा। प्लांट बेस्ड डाइट, जब उस डॉक्टर ने देखा कि वो कबीले वाले योनो मोमो कम्युनिटी है, तो उसका नाम भी बता देता हूँ, योनो मोमो कम्युनिटी। योनो मोमो जो लोग हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनका बीपी नहीं बढ़ता कभी भी, किसी का भी, बच्चे से लेके 80 90 100 साल के व्यक्ति तक भी। कारण यह है वो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, नमक नहीं खाते, उनके पास ये पिज्जा बर्गर नहीं पहुंचा है। कोका कोला तो शायद पहुंच गई होगी उन तक भी, परंतु ये हमें निर्णय करना है कि हमें क्या करना है। सो एक और कमाल की चीज मैं आपको अब ऐड करूंगा, ये तो खाने पीने तक की बात हो गई जिससे हमें लाभ मिलता है, क्योंकि आहार हमारे जीवन को बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ना। इनपुट कोई भी हो, आहार यानी फूड इज एन इनपुट। दूसरा इनपुट क्या है? विचार। विचार यानी आपके माइंड में क्या जा रहा है, वो भी तो इंपैक्ट डालता है, और 90% इंपैक्ट वही डालता है। अब आप कहेंगे बीटरूट तो गौरव जी हमने रोज शुरू कर दिया, हमने बाकी काम भी शुरू कर दिया, हम बाकी भी कर रहे हैं, वो भी हो रहा है, परंतु फिर भी मेरे को फर्क नहीं, मेरे को अभी भी बीपी बढ़ जाता है। 90% इंपैक्ट आहार आपने बदल दिया, 90% इंपैक्ट माइंड से भी पड़ेगा। अगर आपने माइंड के अंदर विचार चेंज कर दिए, आपको बीमार कोई कर नहीं सकता। 90%। अब माइंड के ऊपर क्या करें, माइंड को कैसे ठीक करें? माइंड को तो आदत हो गई है नेगेटिव सोचने की, तो वहां पर आप अवेयरनेस, जागरूकता लेकर के आइए। नेगेटिविटी आ रही है, दिस इज माय फर्स्ट थॉट, नेगेटिव, ओके, आई कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई चेंज। थॉट बनाना माइंड का काम है, परंतु माइंड के मास्टर बनना आपका काम है। अगर माइंड आपका मास्टर बन गया तो जिंदगी बर्बाद कर देता है वो। यू बिकम मास्टर ऑफ योर माइंड। आपके माइंड ने कहा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, वो लेट है, फोन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले ही विचार को कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और अपने शरीर के बारे में नेगेटिव थॉट आ रहा है, बीमारी, कैंसिल। और उसी समय पहले थॉट को पकड़ लीजिए, या जब पकड़ सके पकड़िए, बहुत लंबा ना बनाइए, क्योंकि एक ही विचार आएगा ना कि कल सुबह उठ के क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में, तो अभी के अभी माइंड आपको कहां तक ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रिज में क्या है, ब्रेड तो है नहीं, वो तो है नहीं, अच्छा ये बनाएंगे, वो खाएगा नहीं, उसको पसंद नहीं आएगा, कितने सारे थॉट्स आएंगे ओनली एक विचार आने के बाद। इसलिए विचारों की वीविंग, ये बुनाई, ये आप रोक सकते हैं। हैदराबाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल, इन्होंने पेशेंट्स लिए जिनका बीपी बहुत बढ़ता था, 6 महीने तक उन पर प्रयोग किए गए। ये इंडियन मेडिकल जर्नल में भी और इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुई है बात, इसलिए बता रहा हूं। उनका सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो डेली चेक किया जाता था, दिन में 3 4 बार रेगुलरली। उनको दवाई नहीं वो खा रहे थे, 6 महीने तक उनको मॉनिटर किया गया और उनको एक चीज करने को कही गई, जिससे उनका बीपी और बाकी की सारी रिपोर्ट्स, डायबिटीज, ये वो सब सारी की सारी नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई और पूरी तरह से ठीक रही। कैसे ठीक हुए जानना चाहते हो आप लोग? तो फिर बताता हूं। वो हुई योग निद्रा से। योग निद्रा, योग निद्रा, दैट इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जिसमें आपको सोना नहीं है। निद्रा शब्द का मतलब ये नहीं कि सो जाओ, सोना नहीं है। योग निद्रा में सोना नहीं होता है। योग निद्रा मीन्स डीपर लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, डीपर लेवल ऑफ रिलैक्सेशन। द मोमेंट आप योग निद्रा करिए, योग निद्रा करते हैं, आप अवेयर भी हैं
परंतु फिर भी पूरे पूरे डीप रिलैक्सेशन में। कई लोग तो खराटे मारने लग जाते हैं 2 मिनट के बाद, योग निद्रा कराते हैं जब मैं, तो 2 3 4 मिनट में खराटों की आवाज शुरू हो जाती है आनी, मैं कल लो सो गए। तो ये नहीं करना है, सोना नहीं होता। अगर नींद आपकी अधूरी है तो योग निद्रा करेंगे, जब नींद आई हुई है तो आपको नींद आएगी, इसलिए नींद पूरी है तब योग निद्रा करें। तो योग निद्रा जब आप करते हैं, बीपी, डायबिटीज, ये दोनों चले जाएंगे और भी बहुत सा लाभ हो जाएगा शरीर में। क्यों? आपने माइंड को ये बता दिया दैट मैं पूरी तरह से रिलैक्स, शरीर आपका रिलैक्सेशन में है, माइंड को एक आदत लगाई आपने रिलैक्सेशन की, माइंड आपको रिलैक्स ही रखेगा। ये आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि योग निद्रा से मेडिकल जर्नल में ये बात पब्लिश हो रही है। हैदराबाद में है इंडियन मेडिकल काउंसिल, वहां पर यह प्रयोग किया गया था और यह प्रयोग कई बार किया गया और पाया गया कि उन लोगों को दोबारा बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई, हाइपरटेंशन नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और भी कई सारी रिपोर्ट्स थी उनकी, ब्लड की रिपोर्ट्स, वो सारी नॉर्मल आ गई। ठीक है, सारा कुछ ठीक हुआ। इसलिए योग निद्रा कैसे करते हैं, इसके लिए आपको योग निद्रा भी मिल जाएंगी। मैंने भी योग निद्रा बनाया है, 40 मिनट्स का भी है एंड 16 मिनट्स का भी है। तो वो आपको अगर आप लिखेंगे योग निद्रा बाय गौरविक तब भी मिल जाएगा, यू कैन डू दैट, यूज दैट। डीप रिलैक्सेशन है, आपको योग निद्रा लेट करके करनी होती है, बैठ करके नहीं करनी होती है। योग निद्रा का एक रूल है कि आपको लेटना है और लेटना है और रिलैक्स होकर के आपके हाथ जैसे जैसे फिर गाइड किया जाता है वहां वहां, और आपको धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स पर ले जाना है, एक एक करके, और एक एक करके बॉडी पार्ट पर ले जाना है और रिलैक्स करना है उसको डीपर रिलैक्सेशन में। माइंड भी फिर रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी भी रिलैक्स होगी। दैट्स ऑल, इतना सा काम है, सो सिंपल। हार्ट पेशेंट्स के ऊपर भी प्रयोग किया गया। ये इतने हाईलाइट होकर के घर घर तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, उसको मैं तो समझ सकता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी समझ सकते हैं। अरबों खरबों डॉलर की दवाइयां बिक रही हैं, सर्जरीज हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ा एक रैकेट है, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई है। इसको इंडस्ट्री कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके हमारी थर्ड आईज तक बंद कर दी गई हैं। क्यों? जिसकी थर्ड आई खुली है वो व्यक्ति किसी की बात मानता नहीं, गलत बात को सही बात को उसको डिवाइन गाइडेंस आ जाता है। तो सबसे पहले तो यही किया गया, हमारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड डाला गया और हम वो टूथपेस्ट करते हैं, किच 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 किच, बच्चे भी कर रहे हैं। वो फ्लोराइड डालने से हमारी थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन, परतें जम गई। अब वो ऐसा हो गया कि अंदर से तो लाइट है पर चिमनी, मान लो दीपक जलाते हो और चिमनी जो होती है वो काली है तो बाहर लाइट नहीं आती। इस वजह से यू कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अभी तो ये सब होगा कि आप तक खराब खाना आएगा फिर भी चाट चाट के खाएंगे, दवाइयां बोली जाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दवाइयां ही तो सबसे, और कुछ है ही नहीं, बिकॉज थर्ड आई बंद है। थर्ड आई के ऊपर मैं बड़ा रिसर्च किया था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड आई के ऊपर बहुत मेरे अच्छे टीचर मेरे को बहुत कुछ सिखा के गए। मैं थर्ड आई की जब करता हूँ, सेशन करता हूँ, तो थर्ड आई में यही बताता हूँ कि क्या खाएं जिससे आप ये डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफाई करें अपनी थर्ड आई को। फ्लोरोड, हमें हमारी टूथपेस्ट आज भी है, हमें कौन सा नाम लूं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए पता नहीं, कौन सी कंपनी का नाम लूं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बैक टू बेसिक्स आना शुरू करें, जो आपके पूर्वज कभी करते थे वहां वापस आए, क्योंकि ये लोग आपको तो खिला रहे हैं सब कुछ पर खुद नहीं खा रहे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि खुद नहीं खा रहे हैं। हार्ट पेशेंट, मैं डॉक्टर्स को देखा, बड़े बड़े सर्जन खुद नहीं सर्जरी करवाते, वो खुद नहीं कराते। अच्छा, हार्ट पेशेंट्स के ऊपर भी क्या हुआ, बात हो रही है क्योंकि आज दो विषय पे, हार्ट पेशेंट्स के ऊपर भी प्रयोग किया गया उन लोगों को जिनको बाईपास सर्जरी बोल दी गई थी,
बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी की बात तो छोड़ ही दो, स्टेंट डालना है वो नहीं, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी तक बोल दी गई, उन लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, ब्लॉकेज रिवर्स। ठीक है। अर्जुन छाल का काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं, दैट्स अ ट्री, उसकी छाल होती है, उसका काढ़ा। आजकल तो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं पैकेट, यू कैन जस्ट बॉयल दैट पाउडर, बॉयल करें उसको काफी खुला, और वंस वो 1/3 रह जाता है आपका पानी जो है बॉयल होके, या इससे भी कम, तो तब आप उसको ले लीजिए। उसको कम आंच पे बॉयल होने दे, होने दे उसको, छाल को, दैट्स ऑल। इसको लीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर हार्ट, हार्ट की हेल्थ के लिए। आई टेक इट, मेरे सेंटर पे पड़ा होता है बॉटल, हम थोड़ा सा उसमें और भी कुछ ट्विस्ट डाल लेते हैं, बट पर मतलब दैट्स हाउ आई कंज्यूम। सो अर्जुन छाल लीजिए। उनके ऊपर जो प्रयोग किया गया था, वो फिर से माइंड के ऊपर आऊंगा, आहार की बात कर दी, उनके ऊपर प्रयोग किया गया, उनको एक मेडिटेशन कराया गया। हार्ट जो पेशेंट्स थे, उनको मेडिटेशन कराया गया और उनको बोला गया कि आप दिन में बार बार करिए। अब जब पेशेंट है जिसको पता है बाईपास सर्जरी होगी, पता नहीं मैं बचूंगा कि चला जाऊंगा, मेरा बनेगा क्या, वो तो अब फ्री है, वो तो यही काम करे, उसको तो प्रायोरिटी है, दिस इज द प्रायोरिटी। आप लोग ना करें करें वो आपके ऊपर है, परंतु जो इस कंडीशन में, उसके लिए तो टॉप प्रायोरिटी है कि मैं करूंगा, आई विल डू इट। सर्जरी की रिक्वायरमेंट एक भी केस में नहीं रही, और फिर वो और करने क्योंकि मोटिवेट हो गए, और करने लग गए, और करने लगे। हार्ट ऐसा बन गया जैसे यंग बंदे का हार्ट होता है, टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ। मैं खुद एक प्रमाण हूं, एक सबूत हूं। मेरी स्पाइन में एक प्रॉब्लम था जिससे डॉक्टर बोलते थे चलना फिरना नहीं होगा, चल नहीं पाओगे, सीढ़ियां चढ़ना तो बड़ी बात है। मैं पहाड़ चढ़ता हूं आज, मैंने सर्जरी नहीं करवाई है, पेन किलर नहीं खाता हूं कोई, दैट्स अ प्रूफ। मेरे पास वो एक्सरेज, वो एमआरआई, वो सीटी स्कैन सब पड़े हैं, पहले वाले भी बाद वाले भी। मैंने हड्डी चेंज कर ली अपनी खुद, थोड़ा सा पोस्चर ठीक किया, बाकी एनएलपी से, माइंड से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामर हूं, तो मैंने खुद वही तरीका अपना के, वही विजुअलाइजेशन अपनी बना के अपनी स्पाइन को पूरी तरह से ठीक किया। इसलिए ये बीपी जैसी, इसको मैं बीमारी नहीं मानता हूं, ये बीमारी नहीं होती है। मेरे पीछे बोलेंगे हाई बीपी बीमारी है, यस और नो? नहीं है। डायबिटीज बीमारी है? नो। कोई भी बीमारी नहीं है, इट इज जस्ट डिसईज। डिजीज नहीं है कोई, डिसईज है। कहां है डिसीज? या माइंड में या आपके पेट में, जो आहार आप ले रहे, दोनों को ठीक कर दो, डिसीज को दूर करो, बीमारी नहीं है कोई। कैंसर बीमारी होती है? बोलो, हम्म, बोलो ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, नहीं होती। होती है। नो। हाई बीपी बीमारी है? नहीं, नो, बीमारी नहीं है ये, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड जो हमने होल्ड किया हुआ है। इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड दैट वी आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग। लंबे टाइम के लिए आप एक स्टेट ऑफ माइंड को होल्ड करते हो, आपका पैटर्न बन जाता है, फिर हम बोलते हैं हम इमोशनल है ना इसलिए। ये कोई बात थोड़ी ना है, आप इमोशनल हो इसीलिए तो आपको ठीक होना है। इसको ताकत बनाइए अपने इमोशनल होने को। वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स। इसलिए योग निद्रा करिए। अभी समय कम है, मैं योग निद्रा नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि हमने मेडिटेशन पहले कर लिया आज। तो योग निद्रा पर जरूर करिए। यू कैन गूगल, यू कैन फाइंड अदर योग निद्रा ऑल्सो। बहुत से लोगों ने योग निद्रा डाली हुई है, आपको जो अच्छी लगे वो आप करिए। शुरू शुरू में क्या है कि योग निद्रा आपको गाइडेड लगाना चाहिए, सो दैट आपका माइंड इधर उधर भागे नहीं और आप सो भी नहीं जाओ। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। जरूर करिए अपने जीवन में योग निद्रा। और अगर आपका कोई मित्र, कोई संबंधी, एनी लव्ड वन, इसको भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी रेकमेंड करिए, उसको रेकमेंड करिए। इस षड्यंत्र से, इस रैकेट से बचाइए, क्योंकि आज बीपी है, 10 साल बाद कुछ और होगा, यही प्लानिंग है।
यही प्लानिंग है। ये षड्यंत्र बहुत पहले शुरू हुआ था, जब हमारे खाने में ऐसी चीजें मिला दी गई कि ये जनरेशन जब आगे पहुंचे, पहले बीमार हो, फिर हमारा खाना ऐसा है बीमार हो। अब बच्चों को आप जंक फूड से, फास्ट फूड से पीछे कर सकते हैं क्या? मोबाइल से पीछे कर सकते हैं बच्चों को? उस रेडिएशन से बचा सकते हो क्या? उनके पास स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं, वो हेडफोन्स आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? डैमेजिंग, डैमेज कर रहे हैं। मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं है, मुझे गिफ्ट करी थी मैंने, तब किसी और को दे दी वापस। मैं कहा मैं नहीं रखूंगा, आई विल नॉट यूज इट। मेरे पास हेडफोन ये वायर वाले हैं, ये वायर देखिए, ये वायर, अगर मैंने वायर वाले पहने तो आप मुझे क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। मुझे मेरी हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए वो रेडिएशन हर 30 सेकंड के बाद। मुझे मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन चाहिए हेल्दी। इसलिए इन चीजों से भी अपने आप को दूर करें। कोशिश करें कुछ समय ऐसा अपने घर में जब आप वाईफाई बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। मैं दमयंती जी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा इस विषय पे। बहुत रिसर्च करके मैंने एक वीडियो बनाया था, मोबाइल रेडिएशन कैसे आपको खा रही हैं। हम्म, आई विल शेयर, आप sure. शेयर करिएगा इनके साथ। हम्म, तो उसका नुकसान है ये, आप ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, इससे बचिए। अपने आहार को जितना सिंपल करो, बैक टू बेसिक्स आ जाओ, मजे लो, खेलो, प्ले लाइक अ चाइल्ड, हंसो, रोज हंसते हो। अच्छा हंसते हो रोज? हमने लाफ्टर वाला सेशन किया था ना दमयंती जी? नहीं किया है। नहीं किया अभी? ओके, मैं आपको, आप नोट बहुत करिए। सेशन करने क्या है। आ, हम दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर आपके अंदर बनाएंगे, मेरा वादा है, आई प्रॉमिस। नोट कर लीजिए आप, नेक्स्ट Yes. सेशन वही करेंगे। Okay. बेस्ट पेन किलर इन द वर्ल्ड। It's a laughter. पर अगर बता देंगे तो आपने जो लाखों रुपए के पेन किलर खाए हैं, आपके इधर उधर खा रहे हैं लोग, वो कैसे बिकेंगे? पर मैं तो बताऊंगा। तो बेस्ट पेन किलर इन द वर्ल्ड, बेस्ट पेन किलर। एक व्यक्ति को बीमारी ऐसी हो गई थी कि उसको 36 पेन किलर दिन में, एक दिन में, पहले दिन ट्रीटमेंट हुआ 36 पेन किलर, और पूरा जीवन डॉक्टर कह रहे थे कि आप अब जिंदगी लंबी जी नहीं पाओगे। वो 40s में था, अपनी उम्र में, उम्र जी नहीं पाओगे, आप बेड रिडन हो जाओगे, आप मर जाओगे, ये सब थोड़े ही 2-3 साल जी पाओगे बस। वो 82 साल तक जिया, एक भी पेन किलर पूरे जीवन में बाद में नहीं खाया, एक भी दिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, एक भी दिन बीमार नहीं हुआ, किसी नेचुरल पेन किलर की वजह से। तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वापस अपने अंदर का दवाखाना खोले। आपके भीतर बहुत बड़ी फार्मेसी है जो सब कुछ अंदर बना सकती है। उसके ऊपर विश्वास रखें, ट्रस्ट करें, सिर्फ सुने नहीं, अप्लाई करें। रोज हंसें, बच्चों के जैसे हंसें, कूदें, नाचें, खेलें। आपके पास अपने बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके साथ खेलो। ये दवाई है। ऐसे मुंह बना के, ऐसे उदास होके ये मत करिए, खेलिए। नहीं है तो कहीं जाइए खेलने, प्ले। इससे एक हार्मोन बनता है, दैट इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर है। अगर एंडोर्फिन बन गया किसी के अंदर, तो आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति को पेन नहीं होगी, कहीं पे पेन नहीं होगी। इट्स अ नेचुरल पेन किलर, एनल्जेसिक। एनल्जेसिक एक नहीं, हजारों एनल्जेसिक के बराबर है ये एंडोर्फिन, राइट? नेचुरली। अब ये नेचुरल वाला ज्ञान नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंडस्ट्री दूसरी वाली बड़ी है। तो अब नेचुरल वाला ज्ञान आप लोगों को स्प्रेड करना है। यू स्प्रेड दिस। और मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैंने पेन किलर भी नहीं खाया, अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर बहुत से लोगों पे अप्लाई किया। जब हंसते हैं तो पेन कम हो जाता है, पर हम हंसना भूल गए। आप देख लीजिए, आप अपने आप से पूछिए, व्हेन डिड यू लाफ लास्ट टाइम? अगर आप बोलेंगे कि इसको अगर आप लाफ्टर बोलते हैं तो दिस इज नॉट लाफ्टर। लाफ्टर जो पेट दुखने वाला हंसते हैं ना, पेट दुखने वाला, दिस इज लाफ्टर। नकली हंसिए, असली हंसे। शुरुआत नकली से करिए चाहे,
कॉमेडी शोज देखिए, कार्टून्स देखिए, हंसिए। जो पेन किलर है वो नेचुरल पेन किलर बनेगा, एंडोर्फिन। इसके ऊपर पूरा सेशन करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे, राइट? आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी एनी क्वेश्चन, कोई भी, कुछ भी। आज सब खिचड़ी बन गई। आज मैंने बहुत कुछ। आपने बीटरूट जी बोला, तो वो किसी को डायबिटीज है इससे तो कैसे खा सकेंगे वो बीटरूट? हाँ, देखिए मैंने अभी अभी बताया, डायबिटीज बीटरूट खाने से नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेस लेने से बढ़ती। डायबिटीज बीटरूट खा, आप आधा खा लीजिए, आप पूरा अच्छा। नहीं खाइए, आधा खाइए। आप ये मान के चलिए कि डायबिटीज आजकल हर घर में क्यों पहुंच रही है? बिकॉज आसान टारगेट है, आसानी से, क्योंकि सबसे पहले डायबिटीज मींस आप बार बार फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन करते थे। आपकी इम्यूनिटी जो है वो कंफ्यूज हो चुकी है। इम्यूनिटी कंफ्यूज हो चुकी है। मेरा पहला वाला सेशन देखना आप, जो फर्स्ट सेशन किया था आपके साथ। यस। इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, या डायबिटीज 2 हो गई, वो शुरू हो गया प्रोग्राम। ओके। डायबिटीज इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिजीज। ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है ये सिर्फ हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। अपने मन के ऊपर ज्यादा काम करिए। डायबिटीज अगर ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो अपने मन के ऊपर काम करिए। 100% आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। ओके। इवन इंसुलिन ले रहे हैं ना जो लोग, इंसुलिन डिपेंडेंसी वो भी खत्म हो जाती है ही वाह। नहीं है। ये बीमारी नहीं है, माइंड का गेम है, ये माइंड का। तो और बीट को माइंड में कुक करने का, बीट को कुक करने का या रॉ खाने का? रॉ रॉ रॉ। रॉ खाना चाहिए। ओके। पर अगर मैंने इसलिए बताया कि अब कोई लोग रॉ नहीं खाएंगे, तो भैया कैसे भी खा लो, फिर राइट। कैसे भी खाइए, खाइए सही। अगर कोई कहता है मैं रॉ खा ही नहीं सकता हूँ, तो फिर खाइए, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं खा सकते, अब जूस ले लीजिए, उसमें नींबू ऐड कर लीजिए, कुछ और पुदीना ऐड कर लीजिए, मतलब अपने हिसाब से आपको टेस्टी भी लगे वैसा कुछ बना लीजिए। आप दही के रायते के अंदर डाल दीजिए, योगर्ट के अंदर ले लीजिए। जी हाँ जी, हाँ जी। और कोई प्रश्न है? किसको भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज गो हेड. हाँ You जी, हाँ जी। can you can unmute yourself and you can ask the I have a question. So Brazil nut, only one nut per month. That's it. नहीं, 9 Nine. 9. Oh, Mhm. 9 nuts. Okay. 9 nuts। Okay. 9 nuts at the same time, or it's just different days is fine. नहीं, अगर आप एक ही दिन खा लें तो ठीक है, या डिफरेंट डेज अच्छा। भी लेंगे नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा. आप And ब्राजील नट्स लेते हैं, देखिए 9 nuts a month will give you the amount of selenium that you need okay. for a healthy All right. heart. Oh, हाँ, okay. या और you can choose sunflower seeds, इतने से रोज, और साथ में chia seeds. You can take it अच्छा daily. अच्छा. And so Arjun That का is the बोला. minimum requirement. That अच्छा. is the minimum requirement. Okay. Right. Right. To reverse the clogging of heart, जो clogging blockage शुरू हो रहा है, to हाँ हाँ. reverse that situation, to reverse unclog the arteries के अंदर जो clogging हो गई है, तो उसको रिवर्स करने के लिए जो अमाउंट ऑफ सिलेनियम दैट वी नीड, वो ब्राजील नट से मिल जाता है। अमेज़न पे अवेलेबल है, अमेज़न पे आपको ब्राजील नट मिल जाएगा। Costco में भी है. If anybody goes to Costco store, they have Brazil nut. Right. Right. I got And it. Arjun chal, so is it like a 1 teaspoon you boil in a 1 glass of water every इसको single day? हम तो क्या करते हैं कि हम इसको बना करके ही रख लेते हैं। इसको काढ़ा बना करके आप बॉटल, शीशे की बॉटल में रख सकते हैं। आप 1 वीक का, 10 डेज का एक ही बारी में बना सकते हो। देन आप थोड़ा सा डालो कप में, उसमें उसको गर्म करिए और पी लीजिए। About like a 30 cc or 1 ounce or something like that. Yes. Yeah. Oh, आप okay. कितना, हम तो उसको दिन में, जब सर्दी है तो हम दिन में 2 बार भी ले लेते हैं। वी तो टेक इट एज टी। चाय Right. का एक ऑप्शन ढूंढ लिया कि चाय नहीं पियेंगे तो ये पी लेंगे। Right. So my husband तरह takes Arjun tablets. हाँ, In a टैबलेट फॉर्म tablet में भी आ form. गया होगा। हाँ. टैबलेट फॉर्म में भी आ गया होगा। यस, आ गया होगा, क्योंकि काढ़ा नहीं पीते कई लोग, तो टैबलेट फॉर्म में भी आ गया। जैसे गिलोय Right. टैबलेट Right. आ गई, बहुत सारे आ गए, टैबलेट भी आ गए। अच्छा. दैट इज गुड फॉर हेल्थ। अगर आप Right. उसको Right. देखिए, इफ वी
टर्न बैक टू बेसिक्स, वापस जाते हैं, तो हम इसको जैसे वैसे खाने की आदत डालते हैं। कोशिश करें, अच्छा, अगर नहीं खाए जाते तो ठीक है, टैबलेट भी हो सकती है, परंतु राइट, अर्जुन छाल अगर आप लेते हैं तो हेल्दी हार्ट गारंटेड है। अच्छा, अच्छा। और no, my husband has irregular heartbeats, atrial fibrillation, and so that makes the heart very weak. But I think since he's taking Arjun tablets, the heart is a little stronger after they did echocardiogram. हम्म, They are seeing that it's better than before. राइट। So, अर्जुन छाल से और भी होगा, उनको थोड़ा मन के ऊपर भी काम कराएं। उनको अच्छा, अच्छा, यहाँ अगर अगर इमोशंस हैं, कोई पुरानी मेमोरीज हैं, या बहुत ज़्यादा फियर इनसिक्योरिटीज या ऐसे इमोशंस आ जाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस, देन या तो उनको एनएलपी या फिर ईएफटी काफ़ी हेल्प करेगी। ईएफटी okay. तब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक उनको हेल्प करेगी, या Uh-huh. सीबीटी एक एक थेरेपी है, वो सीखना है, खुद के ऊपर अप्लाई करना है, या एनएलपी है। इन इन एनएलपी तो काफ़ी हेल्प करेगी इसमें। What is the full form? What you saying? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, Neuro-linguistic program. Okay. दैट्स हमारे माइंड, हमारे Okay. 80 बिलियन न्यूरॉन्स, एंड 80 Right. बिलियन न्यूरॉन्स से हमारे 60 ट्रिलियन बॉडी सेल, Okay. Oh, that's इनको हमारे माइंड से हाउ टू रिवर्स द सिचुएशन और डिजीजेस दैट आर इन फिजिकल okay. बॉडी। Okay. So that's the NLP, and the मैंने other one, मैंने अदर वन इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मुझे cognitive लगता है वो behavior therapy. तभी जरूरत है सीबीटी। सीबीटी की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके पास इमोशंस बहुत है, मतलब वो उस लूप में से नहीं निकल पा रहे। अगर एनएलपी कर लिया तो सीबीटी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एनीवन, Right. ये Right. ऑप्शंस। Okay. I mean, उन basically, he's very strong. The brain, cognitive behavior therapy. In a way, he's a strong man. He's a retired and a relaxed man. हाँ, तो But still, फिर एनएलपी इज फाइन इन oh, दैट okay. केस। All right. एनएलपी मेरे पास मैं एक बताता हूँ, मेरे पास दमयंती जी, मैं आप सबको बताता हूँ कि Yes. मेरे पास एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनके उस समय कंडीशन ऐसी थी कि उनसे सीढ़ियां भी नहीं मेरी पहली बार चढ़ी गई थी जब वो मेरे पास आए थे। अच्छा। 12-15 सीढ़ियां मेरे सेंटर की, तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे। मैंने उनकी वाइफ को बोला कि आप आ जाइए, यू कम, उनको ना लाइए, पर वो आए, सीढ़ियां चढ़ तो गए, वापस उतरना उनके लिए मुश्किल था। जब वो पहली बार मेरे पास आए, यूरिन बैग भी लगा हुआ था उस समय, तो वापस आए तो बहुत मुश्किल था उतरना, बहुत मुश्किल से उतारा गया। मेरे एक बैच में वो आए, एनएलपी रेजिडेंशियल प्रोग्राम था 4 दिन का, तो वो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। मैंने कहा जरूर चलिए, लेट्स गो। तो उन्होंने अटेंड तो किया, फिर हमारा थर्ड डे इवनिंग में एनएलपी जब कर रहे थे, तीसरे दिन शाम को हमने नीचे इवनिंग में डांस का प्रोग्राम रखा, वी विल डांस, सारे पार्टिसिपेट। तो वो कोई 40-50-60 सीढ़ियां उतरना था, तो होटल के अंदर ही था वो प्रॉपर्टी जो थी। तो हमने कहा आप रूम में बैठ जाइए। नहीं सर नहीं, मैं भी उतरूंगा और चढ़ूंगा। बिलीव मी, वो व्यक्ति जो 12 सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा था, 4 दिन के अंदर वो व्यक्ति 50-60-70 सीढ़ियां उतरा भी, चढ़ा भी, डांस भी किया। Oh, that's दिस इज amazing. दिस इज द पावर ऑफ ए माइंड, दिस इज द पावर ऑफ ए माइंड। इसलिए मन को परिवर्तित किया जा सकता है, और मन परिवर्तित होगा, शरीर भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज। तो ये है, बहुत से लोग आए जो डीप डिप्रेशन में थे, या फिजिकली कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बाहर हो गए। एक बार दिल्ली से एक हमारे पास आए थे मैडम, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। खुद भी वो बड़ी एक्टिव थी, परंतु अभी घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उनको, घुटनों की भी, बैक की भी। डॉक्टर ने सर्जरीज बोल दी थी दोनों जगह कि घुटने भी रिप्लेस करा लो, ये भी कर लो। वही मेरा प्रोग्राम था, दैट वाज, उसको अटेंड किया, एंड वो उसके बाद आज तक ठीक ही है। घुटने कमर ठीक ही चला रही हैं। तो उस समय तो शी वाज डांसिंग, शी वाज वाह। डांसिंग। सो दैट इज, क्योंकि हमें ये एनएलपी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें परिवर्तित हो जाता है, चेंजेस। मन हमारे 60,000 थॉट्स क्रिएट करता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी 800 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और हर न्यूरॉन की कैपेसिटी की मेमोरी है 82 जीबी। 82 जीबी, आजकल हम जीबी टीबी में फोन मेमोरी को समझते हैं,
तो 82 GB मेमोरी है इसकी, एक एक सेल की। each तो इस each सेल्स के cell. अंदर ईच सेल, तो इतनी हमारे पास नेगेटिविटी पड़ी है, बस उस नेगेटिविटी को धोना है और नया प्रोग्राम कर देना है। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट्स ऑल। डिजीजेस विल डिसअपियर द मोमेंट यू रीप्रोग्राम। ये रीवायरिंग है, रीप्रोग्रामिंग है, इसको करिए। बीपी बीमारी नहीं होती है, ये याद रखना। कोई भी बीमारी नहीं होती है। बीमारी मतलब एक संकेत है, इट्स अ साइन दैट यू गो इनसाइड एंड चेक व्हाट इज रॉन्ग। गो इनसाइड, चेक व्हाट इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग, तभी बीमारी है। अगर यहां पेन हो रहा है तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। मन में, फूड में, आहार में। आहार विचार चेक कर लीजिए तुरंत। अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड शुगर लेवल इज हाई, उस दिन ये तो चेक करते हैं क्या मीठा खाया, इससे ज्यादा ये चेक करिए क्या नेगेटिव सोचा। हम मीठे के पीछे भाग जाते हैं। ये मापदंड भी, मैं कहता हूं आपकी शुगर 300 तक है तब भी आप बीमार नहीं हो। किसने बोला आपको क्या बीमार हो? आप नहीं हो बीमार। इंसुलिन पे लगा दिए लोग, क्यों? अब इंसुलिन पे लगे हैं, हर महीने इंसुलिन खरीदेंगे, जीवन भर इंसुलिन लगाएंगे। वाह, कितना पैसा कमाएंगे इंसुलिन बनाने वाले और बेचने वाले। देखिए कितनी सुंदर योजना बनाई उन्होंने, लोगों का बड़ा गर्क कर दिया। तो आप इस चक्रव्यूह में से निकल जाइए, क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है, यूनिवर्स आपको ज्ञान दे रहा है। इस चक्रव्यूह में से निकलना शुरू करिए, ये विजडम आपको इस चक्रव्यूह में से निकालेगी। मैं बचपन से इस चक्रव्यूह में फंस गया था। इतने स्टेरॉइड शायद किसी को दिए गए होंगे जितने मुझे दिए गए थे। मैं साल में 3 से 4 बार हॉस्पिटलाइज होता था। रिश्तेदार भी मजाक करते थे कि डॉक्टर से पैकेज ही कर लो भैया। कर लेंगे, मजबूर थे। उस चक्रव्यूह से मैं निकला हूं बाहर, पूरी तरह से निकला हूं। आपके सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मैं 2 किताबें भी लिख रहा हूं, एक मैं वहम पे लिख रहा हूं, हिंदी किताब है, और एक मैं इसी पे लिख रहा हूं। हो सकता है कभी जल्द ईश्वर ने चाहा तो कंप्लीट भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो बहुत से अनुभव हैं मेरे भी और लोगों के भी, जो अभी तक शेयर नहीं करे कहीं पे भी। इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ पढ़ के, थ्योरी सुन करके मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर भी किया और बहुत से और लोगों पे भी किया। अब कोई कितना कर पाता है वो उसके ऊपर है, करना आपको मन की गेम है। इसलिए लीना जी, जब भी आपको लगे कि ये शुगर लेवल बढ़ रहा है ना, उस दिन अपने मन को जरूर चेक करिए कि आज मैंने क्या सोचा। जिस दिन आपको पेन ज्यादा हो बॉडी में, कहीं पे भी दर्द बढ़ गया, उस दिन भी चेक करना कि आज मैं ज्यादा दुखी तो नहीं थी, हर्ट तो नहीं ज्यादा हुआ मुझे कुछ, ये भी चेक करना है। पेन किलर मैं दे दूंगा। लीना जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अनम्यूट करिए। Yeah. आई एम नॉट एबल टू। मैं सुन, Yeah. Can I call you sometime? श्योर श्योर श्योर, जरूर। I will take the number from Damayanti ji. Sure. हाँ जी जी, श्योर। Okay. Thank you. Thank you so much. हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना जी? Yeah, I wanted to मैं ask. जरूर कहना चाहूंगा जी जी। Yeah, Sure. Mr. Gaurav, my blood pressure is very good during summer, but it goes really up during winter. What do जी। you suggest? विंटर्स में जनरली बीपी बढ़ जाता है, सबका ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम गर्म कपड़ा डाल करके रखते हैं, हम सिर भी ढक लेते हैं, हम पैर भी ढक लेते हैं, तो ये सबके साथ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि या तो सिर या पैर, दोनों में से एक चीज को नहीं ढको। पुराने बुजुर्ग, हकीम, वैद्य सब यही कहते थे कि या सिर या पैर एक नंगा होना चाहिए, सो दैट यही काम ना हो। इसलिए कोशिश करें ये करने की, और योग निद्रा को जीवन में शामिल कर लीजिए। वंस यू ऐड योग निद्रा, तो अपनी रूटीन में डाल लीजिए योग निद्रा। अगर आपके पास 40 मिनट का समय नहीं होता है तो आप 10, 12, 15 मिनट में भी ये काम कर सकते हैं, हो जाएगा। तो योग निद्रा करें। योग निद्रा करने से आपको बीपी, और बीट रूट को ऐड कर लीजिए अपनी डाइट में। दैट्स ऑल, सिंपल, वेरी सिंपल। बीपी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिजीज। हाई बीपी इज नॉट अ डिजीज। मेरा भी एक बार बढ़ा था, कुछ स्ट्रेस आ गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि सिस्टम तो मेरा भी यही है ना,
रूल्स तो मेरे पे भी अप्लाई होते हैं। बढ़ गया था बीपी, डॉक्टर ने कहा बीपी दवाइयां लिख दो, मेडिसिन ये रोज खाइए, सुबह शुरू कर दीजिए। मैं कहा यस। फैमिली को दवाई ले लो, मैं कहा ले लो ले लो, यस। डॉक्टर को क्या पता कौन से पैसे देने, दे दो दे दो दे दो, पिछले वाले के होंगे, निपटा दो, ले लो। मैंने नहीं खाई, मैंने ऐसे ही ठीक किया, ओके। स्ट्रेस है ना, वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स, बहुत सारा ड्रामा, कार्मिक ड्रामा लेके आए हैं। उस कार्मिक ड्रामा में क्या होगा, ऊपर नीचे होगा ना, ऊपर नीचे होने से हो जाएगा, हमें भी स्ट्रेस हर्ट हो जाता है, परंतु याद कराना कि वो आई नीड टू सिट डाउन, आई नीड टू थिंक, आई नीड टू क्लीन। जैसे मैं ब्रश करता हूँ, जैसे मैं दांत साफ करता हूँ, नहाता हूँ, बॉडी साफ करता हूँ, कपड़े साफ करता हूँ, घर साफ करता हूँ, ऐसे ही मेरे को माइंड भी साफ करना है रोज, डेली। इसीलिए मेडिटेशन आपके जीवन में आई, इसीलिए योग निद्रा डाल लीजिए, बस तुम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। देखो बहुत समस्या नहीं है, विंटर्स में सबका ही बढ़ जाता है और इसी कारण बढ़ता है। विंटर्स में सबका बीपी इसीलिए हाई होता है, और वो हाई नहीं है, दैट्स नॉर्मल, बॉडी का टेम्परेचर है। जब आप गर्म कपड़े डाल के रखेंगे तो बढ़ेगा ही, पैर भी ढके हुए हैं, सिर भी ढका हुआ है, अब जहां बर्फ पड़ रही है वो है, परंतु आप देखिए कि लोगों को वहां पर फिर नॉर्मल जो रेंज है ना, वो रेंज बढ़ जाती है। अब आप शुगर की बात करेंगे, रेंज जब हर बारी कम कर दोगे, ये जो लॉबी है ये रेंज ही कम कर देती है, ये कहते हैं नॉर्मल रेंज ये है, तो नॉर्मल रेंज है तो जो स्वस्थ व्यक्ति वो भी सोचेगा हाय मैं भी डायबिटिक हो गया हूँ, एम आई ए पेशेंट, यस। क्यों? वो रेंज ही इतनी कम कर देंगे कि अब आप भी उसमें आ जाओगे। क्यों? उनको और दवाई बेचनी, उनको और दवाई बेचनी। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट फार्मेसी, डोंट कंसिडर दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डॉक्टर को आप तब गलत बोल सकते हो जब आप कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढ लो। अभी मजबूरी है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पर अपने अंदर के डॉक्टर को जगाओ, जागृत करो, अपने अंदर की फार्मेसी जो ताला लगा है उसको खोल दो, दवाई बनाने वाली फैक्ट्री को खोल दीजिए, और फिर देखिए फिर आपको बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको हेल्प करेगा, आपको पता है कि कितनी हेल्प लेनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, जाता हूं मैं, बट कम। मुझे पता है कि डॉक्टर ने मुझे इतना सा हेल्प करना है, बाकी मैं खुद करना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you आपके so ग्रुप के साथ जुड़ करके दमयंती जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, आपकी ग्रुप की एनर्जी इज वेरी हाई, बहुत वाइब्स आर Thank वेरी you. गुड, इसीलिए अंदर से सब निकलता आ रहा है। थैंक यू So सो Thank we are मच। so blessed. Thank you, Gaurav We ji. are very blessed. Thank you, Very, Gaurav. Damayanti Ben, what I Thank was you. thinking, can somebody summarize this and give it to everybody, or those who didn't attend, you know? Yeah, those who didn't attend, I will send the recording out to them, but I would suggest each and every one to attend it. When you get the information one-to-one, it makes a difference than the listening to the recording. I'm telling you, it's Yes. अभी आप लोग इनकी ऊर्जा में आप सुन रहे हैं, इनकी ऊर्जा के सामने आप सुन रहे हैं और रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, वो two different things. You know, you can pass on to this message to everybody that listening to somebody one-to-one basis is different than listening to the recording. It's always, I mean, I'm not against the recording. It's always good to refer back, but when you are listening to it, we are so many of us, we are every time we have a session, we are on the session. It's not that we have a limited time also, but we make the priority what is important. Important priority is you, your health, your mind, your soul, your body, and all three of that we are working on it through the sessions. So I would strictly suggest each and every one of us to attend it. If it's possible, turn your video on. And ये important ऊर्जा जो गौरव जी दे रहे हैं, खुले आम आपको दे रहे हैं, receive it. Receive it. Gaurav is one of the most important and very informative and very, I mean, I don't have a special word for it. Highly divine person. उनके मुंह से जो निकलता है अमृत,
उसको आप सब लोग जी लें और अपने जीवन में अप्लाई करें, बस वही is a solution for all the problems. That's true. Thank you. Very मैं good. 2019 में दमयंती जी आई हैड अ वेरी बिग एक्सपीरियंस। 2019 नवंबर की बात है, पहले भी हुए थे Right. पर 2019 वाले एक्सपीरियंस ने मुझे चेंज कर दिया। Yes. मैं 2.5 घंटे के लिए अपनी बॉडी से बाहर था, आई वाज इन दिल्ली, तो 2.5 Yes. घंटे के लिए बॉडी से बाहर था और 2.25 घंटे के लिए आई वाज कनेक्टेड विद माय गुरु एंड भगवान विष्णु की एनर्जी। एंड मुझे तभी से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि कंप्लीटली सब कुछ छोड़ दिया, फिर सब कुछ छोड़ के इधर ही लग गए सेवा करने के लिए। उसके बाद कोविड आया, सब हुआ, ये पहले से पता चल गया था कि खास समय आने वाला है। और 2.25 घंटे के लिए मैं रोता रहा उस अनुभव में, आउट ऑफ बॉडी भी मैं रो रहा था। वो रोना किसी पेन के कारण, किसी वर्ल्डली कोई टेंशन स्ट्रेस के कारण नहीं था। दैट वाज ऑल बिकॉज इतना ज्यादा प्यार मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था, जो उस लविंग, उस डिवाइन के साथ जुड़ करके वो प्यार के आंसू निकलते जा रहे थे। देन एक और एक्सपीरियंस हुआ, अभी पत्री जी के जाने के बाद भी गाइडेंस आया था। मैं किसी की आकाशिक रीडिंग कर रहा था, तो वहां पर मुझे पत्री जी के साथ में कनेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि अभी गौरव तुम माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दो। मैंने माइंड के ऊपर काम तो मैं करता ही था, परंतु मैंने माइंड के ऊपर और ज्यादा बढ़ा दिया। मैं एनएलपी पहले भी सिखा रहा था, मन के ऊपर ही बात कर रहा था मुझे, क्योंकि 2019 में भी यही गाइडेंस आई थी कि माइंड को कैसे मजबूत बनाना, उस पर काम करो। Yes. मैं खुद एक समय में इतना टूटा था, क्योंकि जिंदगी में सहा, मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, 3 टाइम। पर मैं बाद में आया, जब सीखा, अपने ऊपर अप्लाई किए, उन सब चीजों को बहुत से मास्टर से सीखा। मैंने बाद में इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के साथ आईएएस ऑफिसर्स को, केएएस ऑफिसर्स को मेरे को सिखाने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका मिला, और टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट, Yes. प्रोडक्टिविटी को। 3 दिन मैंने पढ़ाया, 3 दिन का वर्कशॉप होता था एक एक बैच के लिए। उनके फीडबैक्स आए कि इस वर्कशॉप को 3 दिन से 7 दिन कर दिया जाए। तो कुदरत ने वो दिया, क्योंकि ये थपेड़े जो होते हैं हमारी लाइफ में, हमें सिखाने के लिए होते हैं कि हम खुद को तो करें तैयार, पर कई औरों को देने के लिए। आज मेरे पास ऐसे लोग ज्यादा आते हैं, बहुत, जो कहते हैं कि हम हार गए, हम तो बस जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। यंग यूथ बहुत आता है मेरे पास, डिप्रेशन, एंजाइटी। और बिलीव मी, आई एम सो फॉर्चुनेट, सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मुझे एक माध्यम बनाया, और मैं उनको उस तकलीफ में से बाहर निकालने का माध्यम बन जाता हूँ। बाहर निकाल। एंड देयर आर मेनी ऑफ देम, बहुत सारे। तो धन्यवाद आप सबके साथ Thank जुड़ना। you. Thank इस you. माध्यम से Thank मुझे you. बहुत कुछ मिल जाता है। आई गेट अ लॉट फ्रॉम यूनिवर्स, Yes. so that I can help others. Thank you Yes. very much Thank you. के लिए। Yes. Yeah, God bless you. Thank you. Fortunate to have you. Please Right. come soon. Thank you, Thank you so Gaurav much. ji. Thank you We'll so be in much. touch with Have- you again. yeah, Thank sure, you. sure. Thanks a Have lot. have a good night. बहुत सारी, have a divine night. बहुत सुंदर रात्रि रहे Yes. आपकी। Thank you very Good much. night. Thanks a lot. Thank you. Good night.